आशीषों से भरा हुआ दिन है आप सबके लिए। जो भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, आशीषें आप लेके ही वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, खाली वापस नहीं जाओगे। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग, मुझे पता है फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो आप गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। ये टेस्टमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। तो आइए इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुखजीत कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी ਅਸੀਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के अक्टूबर 2019 में जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इनके पास 2 बेटियां थी। उनके साथ तो बहुत खुश थे और आपकी एक दिल की इच्छा थी कि आप चाहते थे कि आपके पास एक बेटा भी हो। हाँ जी हाँ जी। आपके घर में और किसी के पास भी बेटा नहीं था। हाँ नहीं जी। आप चाहते थे आपका वंश आगे बढ़े। आपको हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी पीरियड्स के दौरान, या डॉक्टरी लैंग्वेज में डॉक्टर ने क्या बताया था कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्या था? ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਵੀਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਹਣ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਹਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਮਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਲੈਹਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੈਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈਹਣ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਗਰਮਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ 3rd ਕੇਸ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ डिलीवरी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ नहीं सी। वो चाहते सी कि आप बताएंगे जब लेहन प्रेयर हुई, प्रेगनेंसी आपकी सेफ रही और परमेश्वर ने 5 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, आपको भी आशीषित किया और जो श्राप था एक तरह का वो भी खत्म किया खुदा ने। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करे इकलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सपना। कहां से आए आप? जलालाबाद से। ये गवाही आपके भाई की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? विजय कुमार। 1 साल पहले ये काम करते समय इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी एकदम से कंडीशन खराब हो गई थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं, आपके भाई क्या काम करते, क्या हुआ था इनके साथ उस समय? मेरा ब्रदर 1 साल पहला ਡੈਂਡਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, चल तेन मेडिसिन दे दिन्नी आ। आप एक खुद स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सब आपके भाई की हैं? हाँ जी। और रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ब्रेन में आपके भाई के ऑक्सीजन ना जाने की वजह से होश नहीं आ रही हैं। हाँ जी। मेडिसिन दी, बिल्कुल इनकी कंडीशन खराब थी और इसी वजह से इनको आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी। और जब होश आई भी तो खींच खींच कर ये सांस ले रहे थे। हाँ जी। और बहुत परेशान थे तब। हाँ जी ब्रदर। क्या कह रहे थे डॉक्टर इनके विषय में उस समय? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ।
मैं ਕਿਹਾ ਵਿਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਈਟ ਕੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ MRI ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ने मेरे ब्रदर ਨੂੰ हैंडल किया। और डॉक्टर कह रहे थे कि चिंता की बात नहीं है, मगर इनको बार बार वही चीजें हो रही थी और कंडीशन इनकी खराब हो रही थी। हाँ जी ब्रदर। और आप पूरी फैमिली पहले से प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी एनएम चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु के ऊपर था। हाँ जी ब्रदर। तो आप अपने भाई के लिए और हमेशा प्रार्थना कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। और फिर परमेश्वर ने आपके भाई में के लाइफ में कैसे काम किया वो बताएं। ब्रदर फिर मैं अपने हॉस्पिटल तो इन्होंने तीसरे हॉस्पिटल लेके गई, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਆਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨੂੰ 6 अप्रैल 2025 को जब मीटिंग चल रही थी तो आप भी उस समय मीटिंग में आए। हाँ जी ब्रदर। आइए पहले उस प्रेयर को हम देखते हैं। राइट नाउ अपने शरीर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और कहें, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पिता तेरी चंगियाई आज इनके जीवनों में, शरीरों में आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने भाई के लिए रिसीव किया। हाँ जी परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया। हाँ जी उसी समय इनकी बॉडी जो थी वो हल्की हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। और उसके बाद से अब 4 महीने 11 दिन हो चुके, आपके भाई पूरी तरह से हील है। हाँ जी ब्रदर। कोई चक्कर नहीं आते हैं, नहीं ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ब्रदर। प्रॉपर ऑक्सीजन जैसे सांस ले पा रहे हैं, हाँ जी ब्रदर। एकदम हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। जब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, थैंक यू जीसस बोले। आज आप सेम उसी ग्रेस के नीचे हैं। आज आप जब विश्वास के साथ उन शब्दों को, उन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा आपकी लाइफ में करेगा, तो आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब धन्यवाद देते हुए। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। कहाँ से आई आप? मैं यूपी से। ओके, आपकी गवाही कि जून 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। जी बद्र। तो मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। जी बद्र। तो आप सिस्टर खोलकर बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी? मुझे सपने में ना दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, वो परेशान करती थी और तभी मैं परेशान हो गई थी। मुझे यानी दिखाई देती थी, मुझे बुखार आने लगा, तभी मुझे दिक्कत बढ़ने लगी थी, फिर मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, पेट। तो आप बता रहे कि 2021 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे। जी बद्र। तो उस समय फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ आपके साथ उस समय? मिसकैरेज हो गया था। कैसे हुआ था वो? मैं गंदे सपने आते थे, तभी मिसकैरेज हो गया था। बाकी प्रेगनेंसी के
सेकंड मंथ में आपका मिसकैरेज हो गया जी ब्रदर। और आप बता रहे कि मिसकैरेज के बाद भी नेगेटिव चीजें आपके साथ बढ़ने लगी। जी ब्रदर। और बताएं सिस्टर कैसी हालत थी उस समय आपकी? मेरी बहुत गंभीर हालत थी। मैं और उसके बाद ये सिस्टर मिसकैरेज के बाद काफी बीमार रहने शुरू हो चुके थे। अब तरह कि ब्रदर। आपको बुखार रहता था, वॉमिटिंग आती थी। जी ब्रदर। तो जब आप इतना बीमार हो चुके, जब आपने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दिक्कत है आपको? वो बताए थे कि आपके इसमें इंस्पेक्शन हो गया लीवर में। तब वो मैं जांच करवाई तो मुझे टीबी निकली। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का भी रोग हो चुका है जी ब्रदर। और पूरी बॉडी में आपके इन्फेक्शन फैल चुकी थी। जी ब्रदर। इस सिस्टर का लीवर भी इन्फेक्टेड हो चुका था जी और ब्रदर। डॉक्टर ने एडमिट तक किया। अब तक कि जब डॉक्टर ने आपको एडमिट किया, लेफ्ट साइड पेट में छेद करके आपकी गंदगी निकाली गई जी शरीर से ब्रदर। और काफी इनकी गंभीर हालत हो चुकी थी। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई, टीबी का रोग हो चुका था, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। तो अब तरह के डॉक्टर ने साफ साफ आपको बोल दिया था आप कभी भी बेबी का सोचना भी मत। जी ब्रदर। तो उस समय कैसा फील हुआ जब डॉक्टर ने बोला आपको? उस समय मुझे बहुत दुख हो रहा था। तभी मुझे सुसाइड करने की वो होती थी और मुझे वो डर भी लगता था। मैं बहुत गुस्सा थी, अकेले रूम में बंद रहती थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं किसी से बात ना करूं। और मुझे ओके सिस्टर, काफी अटैक बढ़ते गए। आप सुन पा रहे हैं कि कैसी हालत है उस समय सिस्टर की। तो आप सिस्टर फिर ऐसी हालत में यहाँ पे इतने बीमार हो चुके थे, बेबी नहीं था, मिसकैरेज हो गया, इतने निराशा भरी जिंदगी में, फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? बड़ी मेरी एक जेठानी है, वो चर्च के बारे में बताई है। तो उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया। जी ब्रदर। तब का फेथ बढ़ा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जी ब्रदर। और जैसे परमेश्वर के दास वचनों को सुनाते थे, प्रार्थना करते थे, तो इस बहन का फेथ बढ़ा कि हाँ मैं ठीक होंगी, परमेश्वर मेरे बेबी के साथ ब्लेस करेगा। फिर 3 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो जो बहनें जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। आज आपकी लाइफ की हर एक बीमारी को, हर एक पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं। ओके, तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी तो क्या हुआ उसके बाद? तो फिर उसके बाद मुझे हल्का महसूस हुआ और फिर मुझे याद ही नहीं। तो उसके बाद जो आपका टीबी का रोग था, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने टेस्ट करवाए, फिर जी क्या आया फिर टेस्ट में टीबी? फिर जी ब्रदर, 2024 में मैं प्रेग्नेंट थी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद टीबी खत्म हो चुका था, जी ब्रदर। कोई बीमारी नहीं थी। जी ब्रदर। जैसे मार्च में प्रार्थना हुई तो कितने महीने बाद आप प्रेग्नेंट थे? फिर वो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हुए। जी ब्रदर। परमेश्वर ने 9 मंथ संभाल कर रखा। जी तो आप ब्रदर। बताएं फिर क्या दिया परमेश्वर ने आपको? बेबी बॉय। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, टीबी के कारण जो पूरी बॉडी सिस्टम की पूरी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और डॉक्टर पेट में छेद कर करके इन्फेक्शन बाहर निकालते थे। डॉक्टर ने बोला था कि कभी सोचना भी मत बेबी का, लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, टीबी का रोग जड़ से खत्म हुआ। अगले महीने प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दें कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। लेकिन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? जय मसीह की सारे नु। मेरा नाम मीनाक्षी है।
ਮੈਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ नहीं हो रहा सी। मैरिज के बाद हाँ जी। अक्टूबर 2023 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर। प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में क्या हुआ था? ब्रदर सेकंड मैरिज मंथ में ऐसा हुआ कि मैं रात को पापा जी का ऐसे सरमन सुन रही थी तो अचानक मेरे सामने एक गलत वीडियो आ गई और वीडियो को देख के मैं एकदम में से ना दहल गई। तो दहलने से बाद मेरी ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट डे हम सुबह ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया और उन्होंने मेरे इंजेक्शन भी लगवाए थे भी ब्लीडिंग रुक जाए। पर बट हम जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले प्रेयर करके गई थी कि खुदा तूने दिया तो तू ही संभाल के रखेगा। तो उसके बाद जब मैं आई उसके बाद फिर भी मेरी ब्लीडिंग ठीक थी। फिर डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन दे दी। मेडिसिन लेने के बाद भी घरे आके मेरी ना ब्लीडिंग प्रॉपर्ली रुक नहीं रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने क्या अगर प्रभु तू जो देता है आशीष देता उसके साथ दुख नहीं मिलाता, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रभु के साथ विश्वास रखा। मैं कहा प्रभु अगर तेरी ओर से है तो भी मेरी जिंदगी बना रहेगा, अगर तेरी ओर से नहीं है प्रभु जो तू तेरी इच्छा मेरी जिंदगी पूरी हो। तो उसके बाद ब्रदर फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था, पर मैं फिर भी प्रभु में अड़ी और खड़ी रही। मैं कहा प्रभु तूने दिया है, तेरी महिमा के तेरी गवाही दूंगी प्रभु ईश्वर, मुझे भी अपनी जीवत हजूरी में आने का मौका देना प्रभु। मैं तेरी तुझे बढ़ाई देती हूँ, तुझे महिमा देती हूँ अपने जीवन से प्रभु, तुझे महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर। और ब्रदर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में वंशों का श्राप है, हमारे घर में किसी घर में लड़का नहीं है, 40 साल हो गए हैं, सिर्फ मुझे प्रभु ने वंशों के श्राप से मुक्त करके, यानी कि आपकी लाइफ में आपके परिवार में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी ब्रदर। और उस वजह से आपकी पूरी फैमिली पर एक बड़ा कर्ज था। हाँ जी ब्रदर। और उसके मिसकैरेज होने के बाद दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, हाँ जी। और आप अन्य जगहों पर भी गए हैं। हाँ जी ब्रदर। और आप जब इधर उधर भी गए कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर। और फिर धीरे धीरे प्रभु पे विश्वास बढ़ाया। हाँ जी प्रभु। खुदा के दास के द्वारा सरमन सुना, टेस्टमनियां सुन के विश्वास बढ़ा। हाँ जी। पर उससे पहले जब मिसकैरेज हुआ तो आपके मन में कोई आस नहीं थी कि अब मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी? नहीं ब्रदर, विश्वास मुझे पूरा था कि अगर मेरा मिसकैरेज हो गया मैं प्रभु में अड़ी और खड़ी रहूंगी, क्योंकि प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग मैं इतनी पक्की हो चुकी थी कि जो अगर प्रभु में खड़ा बना रहेगा तो प्रभु जरूर आशीष देगा। तो मैंने प्रभु पर फेथ बना के रखा। मैं कहा प्रभु तू अपनी महिमा के साथ मुझे अपने सिंहासन में खड़ा किया करेगा और तुझे महिमा देते हुए मैं अपनी गवाही दूंगी। और आप उसके बाद चर्च के साथ जुड़े। हाँ जी ब्रदर। लगातार ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी हाँ शुरू जी की। ब्रदर। और 16 जून 2024 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो खुदावंत के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। हाँ जी ब्रदर। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को पहले। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस दिन ये बहन संगरूर ब्रांच में थे और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उसी समय दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। और नेक्स्ट मंथ ही इनके जब पीरियड मिस हुए तो इन्होंने जब चेक किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और जब सिस्टर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या मन में था, कैसा माहौल था उस समय? ब्रदर बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी कि प्रभु ने मुझे बड़ी गवाही दे दी है। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने इनको 9 मंथ तक संभाल के रखा। 9 मई 2025 को परमेश्वर ने मैरिज के 4 साल बाद हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। जब हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करे सब जन।
तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मैं पैरालिसिस का अटैक हुआ था। नाम क्या आपका? पुलिस कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। ओके, आपकी गवाही की 3 साल पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। जी। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे वो अटैक हुआ, क्या असर हुआ आपके शरीर के ऊपर? अचानक से हुआ, मुझे पता नहीं कभी ऐसे अचानक से हो गया। उसके बाद में मैं बेड में चले गई, कुछ नहीं कर सकते, बेड में कुछ नहीं कर सकते। मुझे मेरे हस्बैंड लेते थे। और बॉडी की, आप बताएं कि बॉडी की कौन सी साइड आपकी रुक गई थी? यस। ओके, लेफ्ट साइड आपकी पूरी तरह से रुक गई थी। जब डॉक्टर जी। के पास ले गए तो डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया। जी। 5 आपने डॉक्टर चेंज किए, लगातार ट्रीटमेंट चला, आपने मेडिसिन खाई। जी। तो इतने ट्रीटमेंट के बाद कोई रिजल्ट आया आपको? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बता रहे कि आपकी फैमिली आपको संभालती थी। और बताएं सिस्टर, जब आप ऐसी हालत में टोटली बेड के ऊपर थे तो कैसी हालत थी उस समय आपकी? बहुत बुरी हालत थे। और मैं डिप्रेशन में चले गई, क्या कैसे हो गया, क्या हो गया, बचूंगी कि नहीं, कैसे होंगे, क्या होगा, ऐसे। तो आप बता रहे सिस्टर, पैरालाइज के साथ साथ आपको रीढ़ की हड्डी का रोग भी शुरू हो चुका था। हाँ जी। क्या दिक्कत थी उस समय उसमें? वो 3 महीने से हो गया। 3 महीने के बाद में फिर नस में प्रॉब्लम हो गया, फिर डॉक्टर के पास गए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। तो मैं परमेश्वर में थी, मैं अपना उद्धार ले चुकी हूँ, तो मैं विश्वास करती थी कि मैं परमेश्वर चंगा करेगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी। आपने सुना ध्यान से कि 3 साल पहले पैरालाइज हुआ। पैरालाइज के कारण तो लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से रुकी हुई थी, टोटली बेड के ऊपर चले गए थे, और साथ साथ में रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ। 24 घंटे बेल्ट को लगाकर रखते थे, बेड के ऊपर लेटे रहते थे, और डॉक्टरों की यही लास्ट स्टेटमेंट थी कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। लेकिन आप पहले से यीशु मसीह को जानते थे और आपका फेथ था परमेश्वर के ऊपर। जी। तो आप सिस्टर, फिर प्रभु ने कैसे हील किया आपको? मैं यहाँ दर्द में था, मैं दवाई खाती थी, फिर यहाँ आई तो मैं वहाँ हॉल में बैठी थी, हीलिंग हॉल में। फिर मेरे को पैर हुई और तेल ग्रहण की और मैं चंगी तो हो 14 अगस्त 2025 की आप बात कर रहे हैं। 14 अगस्त 2025 को सिस्टर हीलिंग हॉल में बैठे थे और ऐसी हालत में चर्च आए थे, टोटली बेड के ऊपर थे, शिकंजे का सहारा लेके चलते थे और फैमिली इन्हें संभालती थी, रीढ़ की हड्डी का रोग था। ऐसी हालत में जब चर्च में आए 14 अगस्त 2025 को, उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। के लिए अपने हाथ को हिलाओ और मैं कमांड करता हूं, आप के अंदर से वो सारी बीमारियां, वो तकलीफें, वो डिस्कंफर्ट निकल के बाहर आ जाए अभी यीशु के नाम में। और मैं परमेश्वर के नाम में कमांड करता हूं, सारे रोग जो इस प्रेजेंस में नहीं रह सकते, मैं कमांड करता हूं, सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, हमने देखा कि प्रभु के दास ने थर्सडे को सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, एकदम से कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत एकदम हल्का महसूस हुआ और बहुत खुल के, मतलब एकदम दौड़ भाग सकती हूँ मैं। उसी दिन आपने, उसी समय आपने शिकंजा छोड़ के देखा? जी। चल पा रहे थे आप? जी। सिस्टर चल के दिखाएं आप। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी का रोग था, पूरी बॉडी पैरालाइज थे, इस शिकंजे के बिना एक कदम नहीं चल पा रहे थे। और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, अपने शिकंजे को ऊपर उठाकर हीलिंग हाउस से चलकर आए, पूरी तरह से हील है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी भी परमेश्वर का नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर, आपको हील करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करे कलीसिया, इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस। बोले सब जन हालेलुया, हालेलुया। तो आप ब्रदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिलकराज है। कहाँ से आए आप? होशियारपुर से। okay, आपकी गवाही कि अप्रैल 2025 में आप अपने बिल्डिंग का काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का। जी। तो आप बताएं ब्रदर, उस समय क्या हुआ आपके साथ, क्या गवाही है? मैं काम कर रहे हैं तो 12 फुट हाइट में काम कर रहे हैं तो बांस टूट गया, हम 2 आदमी एक दूसरे के ऊपर गिर गए।
तो उसके बाद हमारे ऊपर 8 फट्टे गिरे, तो मैं बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में हम जो घर के मालिक थे वो हमें हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जब बेहोश हुआ था उन्होंने इंजेक्शन लगाकर फिर एक्सरे करवाने को कहा, तो तब भी मैं बेहोश ही था। तो जब दवाई दी और पहले छोटी बेल्ट लगाई और घर आ गए और 10 दिन की दवाई दी। 10 दिन के बाद फिर मैं सेट नहीं था, तो फिर बड़ी बेल्ट लगा दी जो यहाँ वाली होती है। तो जब डॉक्टर ने आपकी एमआरआई की, एक्सरे वगैरह किए, तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या है आपकी रिपोर्टों में? तो 4 मनके हिले हुए थे, 3 मनके हिले हुए थे, एक फ्रैक्चर हो चुका था और साइड की 4 पसलियां भी अंदर चली गई थी। अच्छा, आप बता रहे कि डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपको 1 साल टोटली बेड के ऊपर रहना पड़ेगा। जी, 1 साल के लिए बेड के ऊपर रहना पड़ेगा। आपकी पसलियों में भी चोट लगी, काफी भयानक। पसलियों के ऊपर भी चोट लगी थी आपके? पसली अंदर पड़ गई थी। पसलियां अंदर को धंस गई थी, इतने ज्यादा भयानक तरीके से गिरे। 3 मन के हिल गए, 1 मन का पूरी तरह से टूट चुका था और डॉक्टरों की ये स्टेटमेंट थी कि आप 1 साल टोटली बेड के ऊपर रहेंगे। डॉक्टर ने आपको डबल बेल्ट लगा दी। तो जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे आपका, आप बता रहे कि आपने काफी ट्रीटमेंट करवाया आपने, तो कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था दवाई खा के मैं कहाँ पड़ा हूँ, कौन सा दिन है, टाइम क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं पता चलता था मुझे। टॉयलेट वॉशरूम में आपके परिवार वाले आपको उठा के लेके जाते थे इस समय? जी हाँ जी। और काफी हमेशा इनकी हालत बहुत ज्यादा, काम छूट चुका था, घुटने के बल अपने बाजू का सहारा लेके बिल्कुल नहीं चढ़ पाते थे। और आप बता रहे कि आपके कारण आपके परिवार की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी उस समय? बहुत खराब हो चुकी थी, हाँ जी। तो मैं ही कमाने वाला भी मैं ही था। 2 महीने बिल्कुल हालत खराब हो चुकी थी। और इसके कारण आपके मन में काफी अजीब अजीब ख्याल आने लगे? जी, ख्याल भी आने लगे, लेकिन मैं सुसाइड करने में सोच रहा था। बेड पे पड़ा सिर्फ सोच ही सकता था, कर नहीं कुछ सकता था। और काफी इनकी गंभीर हालत थी। ये बोलते कि मैं सोचता था कि मैं मर जाऊं ऐसी हालत से, क्योंकि इनके कारण इनका पूरा परिवार दिक्कत में आ चुका था और काफी गंभीर हालत थी। फिर 1 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर सारे बंधन, वो शैतानी बंधन, वो बीमारी के बंधन, वो रोग के बंधन, वो शर्मिंदगी के बंधन, वो सारे बंधन वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो आपने इस ब्रदर की जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो वो प्रार्थना आपने सुनी, तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? उसके बाद मेरे जो 4 मनके थे उनमें हीट हो गई थी। तो मैंने अपनी बेल्ट उतारने की कोशिश की, तो ब्रदर आए, उन्होंने ऑयल लगाया। तो मैं अपने पाँव को हाथ लगाकर देखा और घूम कर देखा, तो मैं बिल्कुल हील था। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि जो इनकी रीढ़ की हड्डी के 4 मनके जो टूट चुका था, 3 हिल चुके थे, बोले 4 मनकों में मुझे एकदम से गर्माहट फील हुई। उसी समय इस भाई ने बेल्ट, जो डबल बेल्ट स्पेशल तरह के जो डॉक्टर ने बेल्ट लगाई थी, उसी समय इस भाई ने बेल्ट को उतार कर देखा। जो नहीं कर पाते थे कर देखा, पूरी तरह से हील थे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। अब 2 महीने 17 दिन हो चुके, टोटली फ्री है। तारीफ करें इस गवाही के लिए। अब बताने पड़ते आप पूरी तरह ठीक है, आप काम काज कर पा रहे पूरी तरह, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन ले रहे आप, झुक कर देखें, आप जो नहीं कर पाते करके देखें। तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए, जो भाई टोटली बेड के ऊपर था, जिसके कारण उसके परिवार का माहौल पूरी तरह से खराब था। आज डॉक्टर जीसस ने इस भाई को हील करके खड़ा किया। तारीफ करे के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी में परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? सर दीपक का नाम मेरा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर से आया। आपने बताया कि पिछले 22 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि ये नशे कैसे आपकी लाइफ में एंटर किए। सर मैं 16 साल ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ,
ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और आप कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी मात्रा में उस नशे को डेली लेते थे? ਸਰ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼। और आपने अपनी गवाही में बताया कि आपकी जो संगति थी वो इतनी ज्यादा गलत हो चुकी थी कि आप गंदे मजाक, गालियां निकालते थे। हाँ जी। और क्या क्या होता था आपके साथ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और आपने बताया कि आप नशे के ओवरडोज लेके आप सड़कों पे गिरे होते थे। हाँ जी। और लोग आपको उठाकर छोड़ के आते थे। हाँ जी। तो आपने बताया कि जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी आपको नशेड़ी नशेड़ी हाँ जी, नशेड़ी करके बोलते सीगे। और जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप कैसे नशों का अरेंज करते थे? सब मेरे कोल जो पैसे नहीं होंदे सी ते जिੱਥੋਂ मैं शराब पींदा सी ना, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ मैं ਧਾਰ भी पींदा ਸੀਗਾ। और कई बारी मेरा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ झगड़ा भी होया, लड़ाई झगड़ा भी बड़ा होया। तो आपकी जो हालत थी, शैतान ने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ जी। ऐसी हालत में आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਯੂਥ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। आपने बताया कि 12 मार्च 2023 को आप जब खांबरा चर्च में मौजूद थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। खुदावंद का रूह मुझसे कह रहा है, जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर। इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई चांद उठोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच। ब्रदर, आप बताएं कि जैसे ही आपने इन सामर्थी वर्ड्स को अपनी लाइफ में रिसीव किया, क्या हुआ उस समय आपके साथ? सर मैं ठंडक महसूस हुई सीगी। और उस दिन से आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं यार, नहीं। कितना समय हो चुका है आप उस सर नशे मैनू 2.5 साल हो चले जे, 2 साल ते 5 महीने। आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। 2.5 साल हो चुके, आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हाँ हैं। जी। कलीसिया तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। और आज ऐसे लोग जो आज भी नशे के नीचे हैं, व्यभिचार के नीचे हैं और दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आज आपका दिन है डिलीवरेंस को लेने का। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, जब इन्होंने खुदा के कामों के लिए बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ एक बहुत ही बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया। सिस्टर रेखा, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। 4 साल से ये रेंट के मकान के ऊपर रहते थे और बहुत सालों से ट्राई करते थे कि अपना घर हो, लेकिन हर बार जो था वो असफलता ही हाथ लगती। लेकिन जब चर्च में आए, अपने बीजों को बोया, तो परमेश्वर ने अपने नए फ्लैट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर श्याम कुमार जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ ब्लेस किया, उसकी एक्सटेंशन 3 साल की और बढ़ चुकी है, तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। दीपक सिंह, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। बहुत सालों से लाखों रुपए के कर्जे के नीचे थे, चर्च में आए, अपना बीज बोना शुरू किया, टाइट को बोने में वफादार रहे और परमेश्वर ने उस कर्जे को खत्म किया और एक अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके उस नए घर के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। सिस्टर राजेश्वरी महाराष्ट्र के ये रहने वाले, इनके 2 बेटे, उनकी टेस्टमनी है कि गवर्नमेंट एग्जाम जो था वो उनका क्लियर हुआ, फार्मेसी नेवी जो एग्जाम था, और परमेश्वर ने अच्छी पोजीशन के साथ उनको ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े फेवर के लिए।
क्योंकि जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रैक्ट करती हैं या आपके काम को रोकती हैं, वो सारे बंधन टूटते हैं, वो सारे शैतानी प्रभाव खत्म होते हैं। आज जितने जन आप यहाँ पे हैं, आप ब्लेसिंग्स को लेके वापस जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्रदर इमैनुअल के टेस्टिमनी जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने इनको सूबेदार से जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न की एक बड़ी पोस्ट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तो तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की महिमा करें। सब जन ऊंची आवाज में सब जन सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले? मेरा नाम सोनिया है और मेरी रहने वाले कहाँ के आप? अमरोहा। ओके, दिसंबर 2016 में आपकी मैरिज हुई थी जी। उसके बाद पीरियड्स आने में काफी प्रॉब्लम रही, इरेगुलर हो गए। क्या समस्या थी, आप खुल के बताएं थोड़ा। मतलब तो मेरे जब पीरियड जो होते थे मेरे ऐसे ही होते थे, मतलब रुक रुक के होते थे, कभी 2 महीने कभी 3 महीने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी। उसके बाद में मतलब मेरा मिसकैरेज 2 महीने 2.5 महीने ऐसे ही हो जाता था और मैं हर महीने चेक करती थी कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। जब होता था तो मिसकैरेज हो जाता था। फिर उसके बाद में जब कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? 3 बार। और हर बार मिसकैरेज होने का कारण क्या था? कुछ भी नहीं, बस अपने आप हो जाता था। डॉक्टर्स क्या बोलते थे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 बार मिसकैरेज हुआ तो मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ आने वाले समय में? लोग क्या बोलते थे आपको उस समय? बहुत लोग ताना भी देते थे और कहते थे कि तुम्हारे कभी बेबी होगा ही नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा। और जब भी कोई बेबी के बारे में पूछता तो क्या जवाब देते थे या मन में क्या चलता था उस समय? फिर बहुत बेचैनी भी होती थी और बस ये होता था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कि हमारे पास बेबी नहीं है। हम और आप दोनों ही इस चीज को लेके बहुत ज्यादा निराश थे और दुखी थे जी। और हमेशा इन्हीं चीजों को सोच के आप रोते रहते थे जी। मन में गलत ख्याल आने कि मेरे कभी बच्चा नहीं होना। तो आपको और भी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था, गए नहीं आप किसी डॉक्टर के पास? 15 डॉक्टर को हमने दिखाया। 15 डॉक्टर आप ऑलरेडी जा चुके थे उनके पास, लेकिन हल कुछ नहीं। और बेबी नहीं था तो लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। कितने साल हो चुके थे शादी को? 6 साल हो गए थे ब्रदर। और 6 साल में 3 बार प्रेगनेंसी हुई, तीनों बार बच्चे पेट के अंदर ही मर गए जी। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और दवाइयाँ खाई, इलाज कराया, सब फेल हो गया सब कुछ। तो परमेश्वर के बारे में, यहाँ अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ आपको? मेरी जब से शादी हुई है और तब से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मेरे देवर हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। फिर 2019 में मेरे एक देवर हैं अमित, तो वो लेकर हमें यहाँ पर आए थे 2019 मार्च में, 15 मार्च को। फिर उसके बाद में जैसे पापा जी यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए मैसेज दे रहे थे तो मैंने अपने लिए वो रिसीव किया। फिर मैं घर चले गए। उसके बाद में मुझे फिर बेबी कंसीव हुआ और 6 महीने के बाद में फिर से मिसकैरेज हो गया। और जब प्रेयर को रिसीव किया तो बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ आपको और ऐसा लगा कोई चीज छोड़ के गई है? जी, मैं यहाँ पर ही गिर गई थी, बहुत तेजी से गिरी थी मैं यहाँ पर। और उसके बाद अब चौथी बार जब फरवरी 2022 में फिर प्रेग्नेंट हुए जी। हर बार तो मिसकैरेज होता था जी। इस बार प्रेयर रिसीव करी, कोई चीज अंदर से छोड़ के गई। इस बार जब प्रेगनेंसी हुई उसका क्या बना? 2020 में नहीं 22, उससे पहले जो हुआ था 6 महीने का, तो वो मेरा 6 महीने का मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद में मैंने मरने की भी कोशिश की और अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप दूसरी शादी कर लो। और उसके बाद जब आप चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया और प्रेगनेंसी हुई आपको। हाँ। और प्रेगनेंसी को जो सिर्फ 3-4 महीने चलती थी, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी 9 मंथ तक बिल्कुल सेफ रही। वो अभी 6 महीने तक सेफ थी, फिर मिसकैरेज हो गया था मुझे। उसके बाद में मैं माउंटेन प्रेयर शुरू हुआ और मैं माउंटेन प्रेयर देखना मैंने शुरू किया और देखते देखते मेरा फेथ मतलब इतना
बढ़ गया। जब मैंने मरने की भी कोशिश कर ली थी सब, उसके बाद में तो उसके बाद में जैसे ही मम्मा जी का मैसेज था और उसको मैं देख रही थी, देखते देखते मुझे ऐसा लगा मेरे पेट में से कुछ निकला है। और मैं एकदम से मैं उसके बाद में जैसे मैसेज खत्म हुआ मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद में मेरे जैसे ही मैंने वॉशरूम देखा तो इतना बड़ा मांस का टुकड़ा मेरे अंदर से निकला और उसको देख के मैं खुद हैरान हो गई ये क्या हुआ। फिर उसको हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला ये रसोली है और मैं खुद नहीं पता था। फिर उसके बाद में 21 में 22 में फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे देवर आए, फिर यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर उसके बाद में वो मतलब कंटिन्यू चली और मैं फिर बढ़ता गया और मैं मैसेज देखती गई, दुआएं रिसीव करती गई अपने लिए, पापा जी का मैसेज देखती गई। फिर उसके बाद में मेरा बाबू है 9th मंथ तक। लेकिन बीच में भी मुझे परेशानी हुई कि 9 मंथ में मुझे ऐसा लगा था, डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल तुम्हारे बेबी मतलब कुछ होगा नहीं, शायद हो सकता है फिर से मिसकैरेज हो जाए। तो मैंने प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाई। प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाने के बाद में प्रॉब्लम थोड़ी सही हुई और फिर 10 महीने के बाद में बाबू मेरा आया, उस बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको ब्लेस किया। में तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। गहरी बरकत आई है खुदा, ओ जीवन मिलिया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। ओ पत्थर टूट गए कब भी मुक गए अधरू सुख गए खुदा, पत्थर मुक गए। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कि बार बार इस बहन का बार बार मिसकैरेज होता जा रहा था और बहुत ज्यादा ये परेशान थे। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, जब प्रेगनेंसी हुई फिर भी शैतान ने अटैक किया, लेकिन विश्वास में बने रहे और परमेश्वर ने संभाल के रखा और एक सुंदर बेटे के साथ, बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। जीवन मिले ऊंची आवाज से गहरी बरकत आई